basic tool is required to be used whenever we have to analyze how the environment is going to perform in the times to come. There are various factors in the macro environment that can influence us. We call them the PESTEL factors because this is an abbreviation which represents political, economic, social, technological, ecological and legal factors. Let's start with political factors. In any country, there is always a government in power, and governments bring in their own social, political and economic agenda. They bring in their own taxation policies, trade policies and foreign policies. These policies basically have an impact on various businesses. So whatever that policy is, we need to have an understanding of that. We need to know that which government has what kind of policy. For example, there are certain countries where the governments prefer to charge a higher tax and then they invest heavily on people. That is, their public sector investment is higher, but they tax higher as well. On the other hand, there are certain other economies which do not charge a very high tax, but at the same time, they do not inject that money back into the economy as well. So what kind of a policy are we actually looking at in our own country? That's one important thing. The second part is the continuity or the sustainability of the various policies that the government is using. For example, if there is a certain government which is friendly with the neighbors or which is friendly with a certain part of the world, क्या ये अगली गवर्नमेंट में भी यही पॉलिसी बरकरार रहेगी या after the elections when the government will change, तो क्या ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा? Why? Because let's say you are exporting certain goods to a certain part of the world. Let's say आप जो हैं वो US को अपनी कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं and you have this fear कि अगली गवर्नमेंट जो आएगी हो सकता है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे ना रखे, तो फिर लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिस्की होगा कि आप अपना कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मेंटेन करें जिसमें वेयर यू आर हेवीली रिलाइंग ऑन एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग फ्रॉम द यूएस. Similarly, we need to have a good understanding of the social agenda that these governments usually have. So in political factors, we take a look at the government policies, their taxation policies, what kind of foreign policies they have, and the continuity is very important. जितना long term उनका impact होगा society पे, उतना predictable होगा future. The second part is the economic factors. कोई भी economy किसी भी country की एक बड़ा important role रखती है in the business sector. Let's say if हम कहते हैं कि जी the per capita income is increasing, what will happen? It actually reflects that each individual in the society is actually earning or getting more money, which means they will have more money to spend, which means they will have a higher purchasing power, which means that there will be an opportunity for various producers to sell their products. So in economies where there is growth in GDP, where there is per capita income is going higher, there are bigger opportunities that organizations foresee. इसी तरह से एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन क्या है? दैट योर करेंसी बेसिकली लूजेस इट्स वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है. जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स की परचेजिंग पावर है दैट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. फॉर एग्जांपल, आज से कोई हम अगर 90s में चले जाएं, 1990 में पाकिस्तान में पेट्रोल वाज अराउंड 8 रुपीज अ लीटर. टुडे इट्स hovering around 85-90, right? So 100 रुपए के नोट में उस वक्त हम कोई 12-13 लीटर पेट्रोल ले लेते थे और आज आप डलवाएं तो 1 लीटर मुश्किल से आता है. So 100 का नोट तो वही है. Where is the difference? The difference is inflation. So जिन इकोनॉमीज में हायर इन्फ्लेशन है, गो के उससे प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स हैं, जिन लोगों ने वो चीज़ खरीदनी है, उनकी परचेजिंग पावर कम होती जाती है. सो वो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेलिंग और विच आर प्रोड्यूसिंग नेसेसिटीज, उनको तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाउएवर जो ज़रा सी भी जो आइटम लग्जरी में चला जाएगा, उनके लिए इन्फ्लेशन बिकम्स अ नाइटमेयर.
सो आपको देखना पड़ता है किस इकोनॉमी में किस तरफ ट्रेंड जा रहा है और उसी हिसाब से लोग अपना एक्सपेंडिचर पर एडजस्ट करते हैं। इकोनॉमिक के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल फैक्टर का। Social factor is basically we live in societies, we human beings, we live in places where a lot of other people are living and we are dependent on each other, and we call that a society. So when people live together, there are various trends that can be observed within the society. एक example देखते हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले पाकिस्तान में ready to eat meals का कोई concept नहीं था। 1980s में कराची में जितने आज रेस्टोरेंट्स हैं इसके मुकाबले में शायद 10% भी नहीं होंगे। वजह ये थी कि ईटिंग आउट वाज नॉट इन। बाहर जाके खाने को बाज लोग अच्छा ही नहीं समझते थे, बाकायदा बुरा मायूब समझते थे। सेकेंडली देयर वाज द यूजुअल ट्रेंड वाज कि आप घर में अच्छा खाना बना लें, और उसको क्योंकि खवातीन के पास टाइम भी होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चेंज आनी शुरू हुई, स्पेशली इन द मिडिल एंड द अपर मिडिल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि खवातीन ने भी जॉब्स या पढ़ना शुरू कर दिया। द रिजल्ट इज दैट द लेडी ऑफ द हाउस हैज लेसर टाइम अवेलेबल विद हर टू स्पेंड इन द किचन। अपॉर्चुनिटी कहां नजर आई? अपॉर्चुनिटी ये है कि अब उस खातून को फैसिलिटेट कैसे किया जाए, कैसे वो कम टाइम किचन में गुजार के जल्दी से कुछ पका ले। तो आपको दिखेंगे नेशनल के मसाले रेडी टू कुक, इसी तरह आपको KNN की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगी जो कहती हैं बस जी ये 2-3 चीजें डालें और खाना तैयार, 2 मिनट में नूडल्स तैयार, एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाट इज दैट? इट्स बेसिकली अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ अ सोशल ट्रेंड जो ऑर्गेनाइजेशंस ने पिक किया। उन्होंने देखा कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन करनी शुरू कर दी। हाउ कैन वी फॉरगेट कि इसी की एक एग्जांपल जो है हमारे पास, वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का ब्रेक होना है। ये भी एक सोशल ट्रेंड है। जॉइंट फैमिलीज में जब आपके घर में 8, 10, 12, 15 लोग रहते हैं तो आप फिर 2 कमरों के घर में रहना आपके लिए मुश्किल होता था। इसीलिए आप अगर पुराने घरों में जाएं तो वो थोड़े बड़े, जरा ज्यादा जगह वाले घर होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि सैटेलाइट फैमिलीज या अलग अलग रहने का रिवाज जो है वो शुरू हुआ, और फिर क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी, उनके 1 या 2 बच्चे, ये वाली फैमिली साइज बनना शुरू हुआ। आज आप देखिए अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अपार्टमेंट्स एंड दे आर स्मॉल इन साइज। व्हाई दे आर स्मॉल? बिकॉज नाउ द फैमिली साइज हैज श्रंक एंड बिल्डर्स नो कि अगर वो बहुत बड़े बड़े घर बनाएंगे तो ना लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर है और ना उनके फैमिली साइज इतने बड़े हैं कि वो इतने बड़े घरों को जो है वो परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। इसी तरह से एक और चीज देखिए कि जो साइजेस ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी जो प्रेजेंटेशन साइज है, दैट हैज गॉन डाउन एज वेल। जो हम बिस्किट का डब्बा, पहले इतना बड़ा बिस्किट का डब्बा होता था, अब वो हाफ रोल ज्यादा बिकता है। बाज कंपनी ने तो बड़े डब्बे बनाने ही छोड़ दिए, राइट। इसी तरह से शैम्पूज की छोटी बॉटल्स आनी शुरू हो गई हैं, जो टूथपेस्ट है उनकी छोटी ट्यूब्स आनी शुरू हो गई हैं। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। Two basic things are there. One, the family size has gone down. 2, people do not have a lot of money to spend in this economy at this point in time. So organizations उनको ये opportunity देती हैं कि अच्छा आप पूरे महीने का शैम्पू नहीं खरीद सकते, फाइन, आप ये साशे खरीद लें, आप इसमें 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, लेकिन आपका ज्यादा पैसा इस पर खर्च नहीं होगा, and you'll still be getting the service. So सोशल ट्रेंड्स इस तरह से हमारी सोसाइटी को और हमारे लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू टेक अ लुक एट दैट और उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं।